first anniversary of Prime Minister Modi's pet project Swachh Bharat, and CNN IBN's Reena Bhardwaj gets you this story where a school student, just about 13 years old himself, convinced his entire village to adopt toilets and do away with open defecation. It's 13-year-old Omkar Dubey of Khamaria Dhuman, a tiny hamlet in Uttar Pradesh, who's peddling the wheels of change so that he can someday put an end to India's disgrace. मुझे लगा कि जैसे वर्षा होगी तो बाहर बैठने में दिक्कत होगी, अगर शौचालय घर पे रहेगा तो हाँ आराम से बैठ सकते हैं। फिर हमने सभी से, जब अपने दादा से भी कहा, सभी मिलकर के उनसे कहते, वो न मानते। के लिए इसकी जिद थी कि शौचालय घर में होना चाहिए, तो हम लोग की उतनी आमदनी थे नहीं, फिर भी हम सोचा ठीक है चलो। After saving up for 2 months, Omkar's house finally had a toilet of its own. Omkar then approached the village Pradhan. It was Omkar's grit that convinced the headman to allocate funds for the first public toilet of Khamaria Dhuman. And this was 2 years ago. Today, Omkar's efforts have led to 13 public toilets that are funded by the village administration. हमारे गांव में इतने छोटे बच्चे मतलब हमें प्रेरणा कर रहे हैं। Omkar's next mission was a toilet at a place he loved the most, the Khamaria Dhuman Secondary School. This well-kept campus now boasts of 2 separate clean toilets for boys and girls. And Omkar has made his teachers proud. विद्यालय में कई बच्चे पढ़ते हैं एक साथ, लेकिन ओमकार एक ऐसा लड़का है जो कि मतलब अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना चाहता है और वह अपनी पहचान बनाना चाहता है। It was in this school where Omkar learned to spell change. Thanks to his mentor Meena, the 9-year-old animated cartoon character who speaks to rural children through broadcasts over Meena Radio. अब देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। करना हो जब पेट को हल्का, खेतों में मत जाना। याद रहे ये बात कि घर में शौचालय बनवाना। This 13-year-old has turned into a catalyst of change, not just for his home, but his community, his school, and even his village. It's India's stinking shame. More than 70% of Indian homes have no access to a toilet. We live in a country where there are more cell phones than toilets. As a result, more than 500,000 children die of cholera, diarrhea, and even hepatitis, all sanitation-related preventable diseases. Hence, Omkar's crusade for toilets is not just commendable, but vital. In Khamaria Dhuman, with video journalist Suraj Chaudhary, Reena Bhardwaj. बच्चे जब अपने क्लास में मीना रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद जब वो अपने घर जाते हैं तो अपने घर में, परिवार में और उसके बाद समुदाय में जब बात करते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। The winds of Varanasi carried Meena all the way to Mirzapur and straight into Anamika's heart. A young girl who was inspired enough to insist upon having a toilet constructed in her home. पहले हमारे गांव में टॉयलेट नहीं था, इसलिए गंदगी बहुत थी और फिर हमने मीना की दुनिया सुन करके सबको प्रेरित किया। हमने अपने घर में शौचालय बनवाया। Meena has won a place in many students' hearts, inspiring change through her stories. Indra Pratap is one such example. Indra has made his village a beautiful place. Meena sowed the seeds, Indra nurtured the growth. हम मीना की दुनिया रेडियो कार्यक्रम से प्रभावित होकर के अपने विद्यालय में बहुत ढेर सारे पौधे लगाए और अपने गांव में भी लगाए, और जिससे वातावरण शुद्ध रहने लगा और गांव सुंदर दिखने लगा। मीना की दुनिया से प्रभावित होकर बच्चों में बहुत सारे गुण विकसित हो रहे हैं। बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं, अपने खाना खाने से पहले हाथ धोने लगे हैं, खाना खाने के बाद भी हाथ की साफ सफाई करना सीख गए हैं, शौचालय का प्रयोग करना सीख रहे हैं बच्चे, और गांव में जाकर के शौचालय के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। बच्चे बागवानी के प्रति भी बहुत
प्रयास कर रहे हैं कि हमारा गांव पूरा हरा भरा रहे। मीना की दुनिया का मूल्यांकन करने के लिए यूनिसेफ ने समय समय पर अध्ययन कराए हैं। रेडियो प्रोग्राम सुन के 67% बच्चों के व्यवहारों में परिवर्तन आया है। सपनों के उस पार बसा है खुशियों का जहां, वहां तक है वहीं पर है उम्मीदों की उड़ान, उम्मीदों की उड़ान। These are stories of change champions who transformed their realities. They defeated the darkness of ignorance and connected countless others with the bright flame of development. We salute you, our real heroes. Omkar never forgets to listen to Meena Radio. Promoted by UNICEF, Meena is a fictitious adolescent girl character who inspires young adults to stand for their rights and promote behavior changes. It is this virtual mentor that changed Omkar's entire outlook towards sanitation and hygiene. चर्चा पे चर्चा होती है मीना कहानी सुनने के बाद, उसके बाद होते हैं कौन बनेगी मीना, कौन बनेगा राजू, और फिर नाटक होता है। The feisty young boy convinced the principal of his school to invest in a clean new toilet. जब मेरा महीना आता है तभी मैं स्कूल आती हूँ और शौचालय की वजह से अच्छा लगता है। मुझे स्कूल अच्छा लगता है, मैं स्कूल रोज आती हूँ। हम ओमकार भैया को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हम जैसी लड़कियों की समस्याओं को दूर करते हैं। बच्चे जब विद्यालय में शौचालय का प्रयोग करते हैं तो अपने घर जाकर भी प्रयास करते हैं कि उनके घर भी शौचालय निश्चित रूप से हो। Omkar started convincing the village elders about the need for better cleanliness and sanitation. Finally, they understood. One by one, the villagers started building toilets. गांव में हर घर घर टॉयलेट हो गया। हाँ, इससे बहुत सुविधा हो गई, अच्छा लगता है। मैं तो यही बोलूँगी कि सभी बच्चे अगर इससे आगे भी बढ़े तो और अच्छा होगा गांव के लिए। हम चाहते हैं कि हर जगह डस्टबिन लगा हो, इधर उधर कूड़ा करकट फेंकते हैं, वो सिर्फ डस्टबिन में ही कूड़ा करकट डालें, और इसको देखकर हर इंसान सोचेगा कि हम भी ऐसा करें, इससे हमारे आसपास एकदम साफ सुथरा रहेगा। ओमकार भैया ने सबकी मदद की है, इसलिए मुझे ओमकार भैया जैसा बनना है। बीमारियों के इलाज से ज़्यादा इसकी रोकथाम जरूरी है, इसलिए हमें गांव को स्वच्छ रखना चाहिए। Omkar knows that on the path to development, adopting hygiene and sanitation is the only way ahead. इसकी तैयारी के बारे में बताओ। राष्ट्रीय पेपराकोज के लिए जो बुक आती है बस आप लोग उसको पढ़िए और बस उसी को तैयारी कर लीजिए। 1 महीने पढ़ लेंगे अगर अच्छे से तो भी वो निकल जाएगा। वो किताबों की रखी है? हाँ, वो किताब सर से ही मिल जाएगी क्योंकि वो अभी भी सर से ही मिली थी। अब 2 मिनट प्लीज आप ताली बजा दीजिए। विद्यालय के जो वर्तमान छात्र हैं आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। ये आपके सामने जो दीदी खड़ी है ये आपके लिए प्रेरणा है क्योंकि आप भी इसी विद्यालय के छात्र हो। अगर ये विद्यालय में पढ़ते हुए विद्यालय का नाम आगे बढ़ा सकती हैं तो आपको भी प्रयास करना चाहिए कि आप भी दीदी की तरह ऐसे ही आगे बढ़ के काम करें। करेंगे सब लोग? आगे बढ़ना चाहेंगे? और ये आपका सौभाग्य है कि आपके विद्यालय के जो टीचर हैं आदरणीय विनोद कुमार मिश्रा सर जी, वो सभी बच्चों को जिस स्नेह से सब कुछ सिखाते हैं वो आपका भाग्य है कि आपको ऐसे टीचर मिले हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी अध्यापक प्रधानगण और बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आकर कि आप लोग ये मीना जन्मोत्सव मनाया जाता है, मुझे यहाँ आके पता चला। इसके पहले मुझे नहीं जानकारी थी इस बारे में, सिर्फ मीना कैरेक्टर के बारे में मैंने जरूर सुना था, टीवी में देखा था। आप लोगों को मुझे वो कार्यक्रम आज भी याद है जब आप लोगों ने विकासखंड पे एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था पर्यावरण से संबंधित। क्या वो जी बहुत अच्छा वो कार्यक्रम था वो। और
और जिसमें आप लोगों ने पर्यावरण से संबंधित जो जानकारी दी थी वो सभी को वहाँ पे मतलब उपस्थित सभी लोगों को बहुत पसंद आया था। वो उस दिन का सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम था, बिना किसी झिझक के एक सबने कहा सबसे अच्छा कार्यक्रम था। और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग शिक्षकगण हैं जरूर बच्चों को अच्छी शिक्षाएँ मिलती हैं और हर तरह के क्रियाकलाप में आगे रहेंगे।